मैं बोलना शुरू करूँगी, मैं एकदम मेसी वे में चीज़ें बोल दूँगी, मैं रोने लग जाऊँगी, मुझे नहीं ये सब करना है अभी ऑनेस्टली। आई नीड सम टाइम टू प्रोसेस माई फीलिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। काफ़ी लोग कहते थे शो के अंदर एंड शो के बाहर भी कि शी इज़ यूजिंग यू फॉर अ वोट बैंक, एंड अगर योगेश नहीं छोड़ता उसको तो फिर वो तुम्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, एंड बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनीवन, so she had no other option but to be with you. So all of these things, it's like, I don't know. I mean, I never thought it was true. I was like, you know what, it's my friendship. I know better than anyone, all right. But now it's like when I'm looking at the episode and when I'm thinking about it, it's all kind of starting to make sense. And it's not just inside the show, like inside the show, eventually, of course, मेरे side से starting से ही था, वो मुझसे इतना क्लोज नहीं थी स्टार्टिंग में बिकॉज शी वाज क्लोजर टू दीक्षा एंड अदर पीपल. Eventually we bonded. Eventually she could see. It's like, I don't even know, like talking about it is so weird. Like it's like eventually she could see my worth. जितना दीक्षा और आकाशा का फाइट नहीं हो सकता, मेरा दीक्षा का फिजिकल फाइट हुआ. एंड ये बात आकाशा ने बाहर बोली नहीं, एंड आई एम सरप्राइज्ड. आकांक्षा की वजह से मुझे चोट लगी. जो कहते कि मैं रील बना रही हूँ क्लाउड के लिए वगैरह. पहली बात तो आई वॉज फ्रेंड विद आकांक्षा शो के अंदर से. मुझे पता भी नहीं था वो बाहर आके इतनी पॉपुलर होगी. लाइक इट इज़ गुड फॉर, आई एम सो हैप्पी. क्योंकि शो के अंदर ना जब योगेश उसको छोड़ा था, आई टोल्ड हर दैट लिसन आकांक्षा, you are still yet to meet a lot of people who are gonna love you. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. She took a stand for herself and for her friend. She has been the talk of Splitsvilla. Some hate her, some love her, but you absolutely cannot ignore our very own Suzanne. Thank you for doing this. Hi guys, how's it going? Hi, oh my hi. god, you look stunning. You look so pretty. I can see it. I can see flawless makeup. But Suzanne, बात तो सच है ना कि there are people who probably hate is a little too, let's say, intense, don't like you. There are people who absolutely love you. But one thing I'm for sure, you can't ignore what Suzanne has done. You agree with this? Yeah, I do. The thing is that a lot of people fear being original, you know. And one thing about me is that I'm very blunt, alright? A lot of people are afraid of saying few things. Yeah. I don't know, scared to get judged, or just because they feel like, oh, they are not in the position to say it. But I don't care. I say whatever I have in mind, and I feel like maybe that's why people love me a lot, and maybe that's why people dislike me as well. Tunas, before we get into it really, Okay. I want to start with the question that you are being asked a lot right I now. think I know what it's gonna be. तो वहीं से शुरुआत करते हैं ना. It will make our rest of the conversation even more easy. Akanksha, you're okay? क्या हुआ है? People are very concerned, particularly क्योंकि episode drop हुआ था. And I think everybody can agree with one thing, that you are a true friend. बहुत सारे conversations आए थे. I've had people in this in my interview who have tried to make it sound like you've been with her for clout, right? Cloud. But from the episode that we saw last time, which has been shot really, really long time ago when Akanksha was not getting the attention that she was, right? You stood by her in the door when you said that, you know, मैं जो ये decision ले रही हूँ ताकि I don't want her to be alone. I think everybody, all the girls out there could relate to the fact that you need to have that kind of friend in your life. So, Dome की तो बात, of course, you will explain कि, you know, why you felt so emotional. But starting with the tough question, क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? Like, I don't think I am ready to talk about it. Okay. Yeah, it's a very sensitive topic, and interview के starting में मुझे मत रुलाना please. Yeah, so You look emotional. Maybe towards the end I'll bring it up again. We'll see how it goes. Okay. I mean, I don't want to say a lot. It's just that, you know, you'll keep seeing a lot of comments about people saying that, oh, we all want a friend like Suzanne. You know, everyone should have a Suzy in their life. Suzanne is such an amazing friend. But it's just about me. What about, you know? Oh, sure. I mean, in the show, I never really felt like maybe it's one-sided or something like that. Because I was so involved in her. I used to, like, more than myself, I used to think about her. I used to put her above me. I mean, not even my connection. Okay, I couldn't care less, like, ठीक है वो जो भी हो रहा है, मैं इतना emotionally hurt नहीं होती थी. Karina, I was attached to and connected to Vishu as well. But the way I bonded with Akansha was different level. But like, I never knew that I could, you know,
have so much love for a friend in my heart, and so much love, so much care, and so much, you know, the feeling to Protective feeling protective. also. Yeah, exactly. दिखा हमें या तो वो मुझे थ्रू आउट द सीजन था. एंड काफ़ी लोग कहते थे शो के अंदर एंड शो के बाहर भी कि शी इज़ यूजिंग यू फॉर अ वोट बैंक, एंड अगर योगेश नहीं छोड़ता उसको तो फिर वो तुम्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, एंड बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनीवन, so she had no other option but to be with you. So all of these things, it's like, I don't know. I mean, I never thought it was true. I was like, you know what, it's my friendship. I know better than anyone, all right. But now it's like when I'm looking at the episode and when I'm thinking about it, it's all kind of starting to make sense. And it's not just inside the show, like inside the show, eventually, of course, मेरे side से starting से ही था. वो मुझसे इतना close नहीं थी starting में because she was closer to Diksha and other people. Sure. Eventually we bonded. Eventually she could see. It's like, I don't even know, like talking about it is so weird. Like it's like eventually she could see my worth, and I had to do things just for her to see my worth, you know. And I'm not saying that whatever I did it to prove her that I'm worthy of a friendship or anything like that. It's just that I did it because मुझे करना था. वो अंदर से आया था. Even the things I said in the dome and all of that, I did not do to win anyone's heart or to gain popularity outside. I wasn't thinking about any of that. I was just like, you know what, if I get dumped today, I am okay with it. I just want to make sure that at least she has someone to perform with in the show. Because Gaurish ne, I think, उसके एक दिन पहले से dump कर दिया था. She was all alone. She used to, you know, tell me that, Suzanne, listen, I need to at least be in the finale and all of that. And when the people are using me and, you know, they're dumping me and all of that and abandoning me. And I mean, I could understand that because, you know, Vishu भी कहीं ना कहीं प्रीत की वजह से मुझे abandon करना चाहता था. वो feeling आपको भी The worst. Because पूरा season तुम्हें realize नहीं हो तुम्हें प्रीत चाहिए and suddenly you want to be with her. So it was something similar. Like I feel like throughout the season, me and Akanksha we have experienced काफ़ी चीज़ें जो same है. Like we were in the same boat. No, actually, wait. Different situations, but like similar. Yeah, exactly. वैसे way में. So I was just like, you know, I don't want her to feel cornered because काफ़ी लोग उसको बहुत corner करे जा रहे थे. And I was like, if I end up going home tonight, I at least want someone to be there for her if I'm not gonna be. You know, honestly, I can see that Susie's a little emotional right now. So I'm going to bring that up later. You know, I don't want to talk. I don't want to force you to talk anymore about it. But there is so much more. आपने ये सच बात कहा है कि वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से ये रिलेट कर पा रहे थे कि y'all are feeling like y'all are second fiddle to people, right? You mentioned this. You mentioned that you feel disrespected by the way you were being treated by your own connection. क्योंकि you know they would, when he wanted, he would want to be with you, and then when he didn't want to be with you, he just didn't. That's true. Okay. So if you notice, starting I did not have a connection. All right, my confidence was pretty low. Firstly, because not because I don't have a strong self-esteem, nothing like that. It's nothing about me. I feel. Absolutely. Firstly, because I did not have a friend group. I mean, I thought I was a part of Himanshu and the entire group, but I wasn't. I was just the vote bank, and Himanshu himself wanted to remove me, and my entire friend group was against me at some point. And I just felt like I'm just trying so hard to fit in, and I felt like I don't belong, you know, over here with these people. And the whole Saundarya Sada situation that made it even more difficult for me. Plus, I did not have a connection. I used to always be like, what if I go home tonight? What if I go home tonight? Because I did not have a connection. I did not even get the chance to perform. The first task proper that I performed was with Ayush, the skating one. I won. I became safe. And then Sadaf was telling me, you don't deserve to sit there, this, that. I mean, okay, later on it started making sense because, yeah, I did not deserve to sit on the safe side. I deserve to sit on the throne. But all of that in that moment was really difficult for me because I did not know what to do. Even the person I felt like was the closest to me, Akanksha, she also used to not give me that much importance in the start. She was more closer to Diksha and all of them. So Yogesh was also there. Yeah, Yogesh, Saurabh, Akanksha, they were my friends, all right? They did not make me feel like outsider. An outsider, or maybe, हाँ ठीक है formality के लिए बात करते, nothing like that. But again, it's like, they did not prioritize me in the beginning. You know, even when Saurabh and I were gonna get dumped in the first dome, I saw Akanksha's video and she's like, I'm so happy कि Saurabh बच गया, मेरा दोस्त बच गया, but what about me? And that video was shot later on. स्टार्टिंग में शूट नहीं हुआ था वीडियो, हमारा एपिसोड्स के बाद होती है एकदम मे बी मिड सीजन सीजन के खत्म होने के काफ़ी बाद. हाँ.
एंड वो टाइम भी तूने मेरा नाम नहीं लिया. सो आई कॉल तुरंत एंड आई वाज लाइक आई डू नॉट लाइक ऐसा हुआ बिकॉज आई मीन ये तो बैर मिनिमम है इवन इफ आई वाजंट क्लोज टू यू बट मैं फ्रेंड ग्रुप में तो थी ना. एंड शी इज लाइक कि हाँ यार सूजी ठीक है यार चलता है. एंड वो हमेशा ऐसी बातों को टालती रहती थी. मुझे कुछ हर्ट होता था, मैं ट्राई करती थी बात करने के लिए, बट वो ऐसा मुझे लगता था दैट माई फीलिंग्स माई इमोशंस आर नॉट getting validated, nothing like that. So I just stopped telling her whatever I was feeling, and I'm like ठीक है, that was there. फिर उसके बाद thank God the swap happened. Thank God Gullu, Gaurish, Vishu, these people came. I don't know what it was, but I felt like my spark came back. I started feeling more like myself. Because Gullu people, they actually made me feel like a friend. This is all bare minimum. In real life, I would never beg anyone. I would never even force myself to be somewhere where I don't feel valued. But वहाँ पर ऐसा था कि वही तुम्हारा world है, वही लोग हैं, उन्हीं में तुम्हें रहना है. फिर Gullu people came, they used to, we used to have fun. Then we used to connection बना. Starting में, I was unsure about him because a lot of factors. फिर उसके बाद eventually I felt like, he's actually nice. Because he was very understanding, I have had a few breakdowns because of the whole bully situation and all of that, and he was always there. So I feel like kahin na kahin, Vishu helped me a lot into like becoming myself. How to explain this? Like I wasn't feeling like myself in the beginning, but then eventually That confidence came back. Yeah, the confidence came back because he fought for me in the dome session. He did. And I was like, whoa, because no one in that entire villa has ever fought for me like that. No one took my stand. मैं चाहे गलत हूँ सही हो कुछ भी, and everyone just used to corner me कि हाँ ठीक है इसको छोड़ो वाले वे में. And no bro, that's not what I deserve. Yeah. Well, I was literally, even when I was watching the episode, I was just like कि क्या हो रहा है मेरे साथ. Like it was so embarrassing for me to watch because I had to go through that. It was really sad. Then Vishu came and उसने stand लिया. He made me feel more vocal about my emotions and all of that. Then eventually मेरा जो real personality ना बाहर आना start हो गया. ठीक है, कुछ connection मुझे मिला. He was making me feel secure. And then suddenly, the whole pre-situation happened. Before my star performer task, Shiv Hure, suddenly he wants to be with Niharika and Preet, and I was like, what is happening? Because one person I started, getting close to in the show, वो ऐसा कर रहा है मेरे साथ. But उसके बाद भी I was like ठीक है कोई बात नहीं. Maybe he thought that I'm weak because मेरा penguin वाला task बहुत बुरा था. तो I don't blame him वो time पे उसके लिए. Then I nailed it. I nailed the task. A lot of people are saying कि Vishu came to you because you performed really well. You're a strong performer. इसलिए तेरे पास वापस आया. हो सकता है. Of course वो time पे सब game mentality में थे. Start था वो show का. मैं और विशु start न्यू ही मिल रहे थे. But मेरा वैसा नहीं था. I wasn't with him कि ऐसे way में कि हाँ strong performer है वगैरह. I was in a way कि he's a nice person and he understands me. वैसे वे में तो all of that happened, and then eventually I started, the thing with me is that if people appreciate me ना तो I start blooming more. Encouragement थोड़ा. हाँ, but everybody needs that ना, थोड़ा तो सबको चाहिए होता है. Yeah. So star performer वाला हुआ. Then I started and then I just remembered who I was. I'm like what the hell, I literally forgot who I am bro. फिर मेरे one liners शुरू हो गए, and then they used to clap and woo and all of that, and I was like wait, people are loving this. And loving the style of Akanksha also, and you fought for her also. Yeah. आकांक्षा के लिए मैंने बहुत सारे इंग्लिश शो वालों ने काफ़ी कट भी किया है. I feel like every dome में मेरा dome had become my favorite spot by the way, because मैं ऐसे one liners मारती थी ना. I used to, you will never see me yelling and screaming and saying गवार ये वो, you'll never see me doing that. वो खाली गवार लोग करते हैं. I used to always talk as a point way and that's it. Literally पता हमारा break होता था ना जब, so these cameraman miking वाले लोग आते थे check करने के लिए. So these mic dada used to come to me, used to be like कि oh my god Suzanne, तुम्हारा एक dialogue 100 dialogue के बराबर है. And I was like कि let's go. पर वो हमने देखा last time भी I think जो sarcasm चल रहा था with Preet and Vishu going to the for going for the ideal match Oracle में, so the sarcastic reaction everybody was First of all, starting में it was really embarrassing for me क्योंकि मेरा connection किसी और से Oracle में जा रहा है. Okay, आपसे पूछा जा रहा है क्या कैसा लग रहा है आपको. मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कैसे. सनी मैम लाइक Suzanne, you feel like you don't care. And मुझे I was feeling everything in that moment. Okay, कहीं ना कहीं I was unbothered. I was like कि I knew नहीं बनेंगे, but I was like what if बन गए तो मेरा क्या होगा यहाँ पे वैसे वे में. फिर स्टार्टिंग में I was feeling really embarrassed कि मतलब
a man is making me feel like I am replaceable वाले वे में, like a man. फिर उसके बाद वो नहीं बने, फिर वापस वो सुजान अंदर की बाहर आ गई कि ओह I did not expect that. Bro, I kid you not, वो टाइम पर ना I was इतने ड्रामे कर रही थी ना, मैं सब रो रहे हैं उनके साथ साथ मैं भी रो रही थी ऐसे ऐसे. उसके बाद मैं कि उसे थोड़ी हंसी कंट्रोल कर रही थी, फिर मैं रोने की एक्टिंग कर रही थी मस्ती में, ठीक है. शो वाले ने काट दिया वो सब. लाइक काफ़ी लोगों को सेंसिटिव हो सकता है कि भाई तू रोने की एक्टिंग कैसे कर सकते. आंसू नहीं निकल रहे थे मेरे, मैं खाली एक्टिंग कर रही थी वो सार्कास्टिक वाले वे में, बिकॉज वो इतना कर रही थी ना हरकतें प्रीत. एंड इवन ड्यूरिंग द टास्क जो दीक्षा को मिला था वेर आई थ्रू द क्लोज, तभी मेरा प्रीत का फाइट हुआ था. वो टाइम पे वो आगे हुई एंड शी स्टार्टेड सेइंग दैट सुजान मैं अपना गेम खेलूंगी ना, मुझे भी अपना गेम खेलना है, मेरा कनेक्शन निकल गया तो मुझे दूसरा कनेक्शन बना रहा है. एंड आई वाज लाइक कि bro, you're ruining my game, you're ruining my entire journey, my entire everything, my entire connection. And then she goes like, but I need to play my game. And then I told her, okay, but when I start playing my game, तब रोना मत. And she like कि धमकी दे रही क्या? I did not say anything. फिर उसके वही I think उसके अगले दिन डोम हुआ and वो रोते रोते घर चली गई. तो मैंने उसको वही डायलॉग मारा था उसका, एंड शो वालों ने दिखाया नहीं. वो इतना आइकॉनिक होता ना, क्योंकि शी वाज लाइक कि तू मुझे रुला के दिखाएगी क्या. आई मीन क्या बोलते हैं, मेरी हिंदी थोड़ी सी तू मुझे रुलाएगी क्या, समथिंग लाइक दैट. Oh, in the sense like you will do that to me, like You think you can make me cry. वैसे वे में. एंड आई डिड दैट. आई मीन आई डिड नॉट डू इट, द तांशु डिड इट. बट अगर आप खाना ऐसे खाओ या फिर ऐसे खाओ तो खाना पेट में ही जाने वाला है ना आपके. सो या. Because you already mentioned the Diksha wala fight, you just mentioned it. बहुत चर्चा हो चुका है उस पे. But a lot of things people have said is not clear because जो दीक्षा ने claim किया था that Akanksha had spoken really mean things about her mother, saying that you know, like she would do that to her if she was a child and all of that, like really mean things. And Alicia doesn't have a mother, and she said that the fact that somebody will make a comment saying that अगर मैं उसके पेट में होती तो मैं ये कर दे, मतलब अगर उसकी, you know, if I was in her place I would have done that, is a very insensitive comment to make. But of course I think Akanksha, all of you all have been denying it, saying that she has not said it. So we were in the same room जब उनका argument start हुआ. Akanksha never once said anything about her mom. I तो didn't even know about her, you know, entire family situation की कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता था. एंड मैं कभी भी किसी के पेरेंट्स पे इतना कमेंट नहीं करती, लाइक करती नहीं हूँ कभी भी. मैं भले ही ऐसा बोल सकती हूँ कि कैसा इंसान है वगैरह, वो इंसान को बोल सकती हूँ, बट आई नेवर गो ऑन देयर पेरेंट्स की उसकी मॉम ऐसी है वगैरह, नो. ओके. एंड आकांक्षा ऑल्सो मेरे सामने से ऐसा कुछ बोला नहीं था. एंड इवन दो वट एवर इट इज़, आकांक्षा इज़ नॉट समवन जो ऐसे कमेंट करेगी. एंड अगर आकांक्षा को ऑलरेडी पता था अबाउट हर मॉम का सिचुएशन, तो आई डोंट थिंक आकांक्षा वुड हैव एवर, एनीवन वुडंट डू दैट. कितना भी तुम्हें गुस्सा है, कोई इतने हद तक नहीं जा सकता. वेरी हॉरिबल थिंग टू से. वो टाइम पर दीक्षा brought this whole thing up because she wanted sympathy. Yeah. I mean, okay, a lot of people will be like, Suzanne, this is really sensitive and you're just saying कि इसको sympathy चाहिए, cloud चाहिए, but sympathy ही था because she knew she was wrong. Alright, उसको पता था, उसके अंदर वो frustration build up हो रहा था आकांक्षा को लेकर, because she did not like the fact that me and Akansha are becoming close. Diksha never liked me, I don't know why. I never liked Diksha because Diksha was fake throughout. वो मतलब basically हिमांशु की वो puppet थी and all of that. तो ऐसे चला आकांक्षा कि समझना ये बंदी नहीं है सही, you know. अगर हिमांशु उसको बोलेगा आकांक्षा दोस्ती तोड़ देगी, एंड आकांक्षा से भी लेकिन नो यार दीक्षा अच्छी है ना. आकांक्षा तो ऑलवेज प्रायोराइज दीक्षा ओवर मी. रात को भी लेट नाइट ना के रूम में रहती थी, वो लोग चल जाते थे. एंड मुझे अजीब लगता था जाने के लिए, क्योंकि दे यूज्ड टू, यू नो, समटाइम्स वी विद देयर कनेक्शंस एंड आई डू नॉट हैव अ कनेक्शन. तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ. तो आई जस्ट यूज्ड टू सिट इन द रूम. आई डिड नॉट हैव माय फोन, नथिंग. मैं रूम में बैठती थी, फिर मैं अपना वो ड्रॉ साफ करती थी एंड वगैरह वगैरह. एंड कहीं ना कहीं आई टू टॉक टू अंजलि ऑल्सो. अंजलि तो ब्रो लाइक ऑफकोर्स लाइक अंजलि वॉज देयर, मेरे साथ बात करती, टाइम पास होता था. बट अंजलि सबकी इतनी बिचिंग करती थी मुझे, वो गौर के टेन वॉन्ट्स मी, बट सदाफ इज सच एन आंटी ब्रो. बीच में आ जाती है वो, लाइक लिसन, मजबूरी हो मुझे सुनना पड़ा बिकॉज मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था करने के लिए. मैं रूम में अपना साफ करी सामान, अंजलि बोल जाती थी, बट मैं सुन के निकाल देती थी. मैंने वहाँ पे किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ की बातें मुझे नहीं करनी थी एंड ऑल ऑफ दैट. So yeah, I mean, I think Diksha is a horrible human being. Genuinely, I would never say this about anyone, but she genuinely is. Like, I'm a very forgiving person, you know. मुझसे कोई इंसान 2-3 मीठी बातें कर लेगा ना झगड़े के बाद, I will be like कि ठीक है यार कोई बात,
कोई बात नहीं. हिमांशु तक को मैंने शो के बाद ऐसे फॉरगिव कर दिया था कि इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ शो, यू नो. उसको भी अपना गेम खेलना था. इवन आई हैव सेड अ लॉट ऑफ मीन थिंग्स टू हिम. आई फॉरगिव हिम. बट दीक्षा, नेवर. Is I mean, is it though? Obviously it was, but Ron told me that like it is shown that obviously Diksha started the first physical contact, which she is admitted also, right? How bad did it get from there? Because you guys, Ron told me it was bad, and I know you were in there, so I have to ask you, कि मतलब क्योंकि it was cut, लोगों को देखा तो नहीं. So there is a lot of context missing. Some people are saying, in fact, Diksha went, I'm sure, you know, she went live and she said that the show is being biased towards them. So they cut all my parts and all the conversations and all of that. So you're someone who's been there. I think आपसे सुनना ज़रूरी है. Okay. It's like everything was happening for a long time. Like वो आधा घंटा 40 तक तो चला ही होगा पूरा झगड़ा चिल्लाना वगैरह. But when I was in the moment, it all just felt like, it felt really fast. लगा बस फ्लैश हो सब खत्म. ठीक है. But जहाँ तक मुझे पता है, मैं वहाँ पर थी. जितना दीक्षा और आकांक्षा का फाइट नहीं, उससे ज़्यादा मेरा दीक्षा का फिजिकल फाइट हुआ. एंड ये बात आकांक्षा ने बाहर बोली नहीं. एंड आई एम सरप्राइज्ड. आकांक्षा की वजह से मुझे चोट लगी, लाइक टू प्रोटेक्ट आकांक्षा, एंड उस ताकि आकांक्षा को मार नहीं पड़े. आई गॉट ओके, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. सो मैं आई वाज हैविंग माय ओन डिफरेंट कॉन्वर्सेशन विद विशु एंड प्रीत इन द अदर रूम. करेक्ट, जो आपने बोल रही थी. हाँ. तो उन्होंने यहाँ पे शो में कैसे दिखाया, पहले प्रीत सुजान वाला सीन दिखाया, उसके बाद दिखाया तो सबको लग रहा था कि मे बी प्रीत का गुस्सा उतारी उसने दीक्षा पे सुजान ने. बट वो था ही नहीं. कि वो टाइम तो मुझे विशु ने बताया ही तो उसको प्रीत का परफॉर्म करे. वो टाइम वो लोग खाली बस ये खिचड़ी बना रहे थे. एंड मैं मस्ती ले थी कि क्या चल रहा तुम्हारा, ठीक है. वो तो वैसे चल रहा था. उतने में ही आई हर्ड आकांक्षा स्क्रीमिंग. वो रूम में थी, हमारे साथ, मुझे चलेगी तू वापस. एंड आई हर्ड स्क्रीम. आई जस्ट गॉट अप एंड आई लेफ्ट द रूम. विशु ने कि हमारी बात खत्म नहीं हुई, दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, तू कहाँ जा रही हो, चिल्लाने लग गया. एंड आई डिड नॉट केयर. आई एम लाइक यू नो व्हाट, फक इट, मैं जा रही हूँ करके. क्योंकि आकांक्षा पे चिल्लाने की आवाज़ है ना, आवाज़ लेके आई नीड टू ब्रीथ है, कुछ भी हो रहा है. बिकॉज यहाँ पर भाई सब पता है पिरानास बन गए थे. ऐसा लग रहा था कि शी इज़ अ ह्यूमन इनसाइड द sea, ocean, whatever, and they're all piranhas and they're trying to eat her. Not just her, even me, honestly, at some point. फिर वो हुआ, and then I ran out, and then I see कि दीक्षा ने सारा सामान आकांक्षा का बाहर फेंका है. तब भी मैं हंस रही थी, ठीक है, क्योंकि हमने कि क्या फालतू, क्योंकि आई कॉल्ड हर साइड कैरेक्टर ना, तो मुझे लगा स्पॉटलाइट पे आने की वो हरकतें कर रही है, तो मुझे हंसी आ रही थी कि इसको इतना चीज़ अफेक्ट कर गई कि ये सब कर रही है. तो उसके पहले जो टास्क हुआ था वो बलून वाला, तब भी उसने वो आप लिखा था बोर्ड पे कि ओ मी एंड हिमांशु वी आर नॉट इनसिक्योर बिकॉज वी आर बोथ द मेन कैरेक्टर समथिंग. एंड आई वाज oh my god, that is so embarrassing. But ठीक है, वो हुआ तो I was just like chill. हमने कि ठीक है जो भी. फिर मेरे भी सामने पड़े थे वहाँ पर, मैंने रिएक्ट नहीं किया. हमने कि छोड़ो यार, इसको भाव नहीं देना. उतने में ही उनकी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई and they are like this close to each other. Diksha slapped her सबसे पहले स्टार्टिंग में. Then Akansha slapped her. Then they before they could like this, I think they started, they were gonna pull each other's hair. वो लोग खींच रहे थे, मुझे तो याद नहीं है. उतने में ही मैं उनको पीछे खींचने लग गई. एंड नहीं हो रहे थे वो लोग दूर. आकांक्षा का ड्रेस नीचे गिर रहा था, उसका यहाँ से कट है ड्रेस में, वो नीचे हो रहा था. मैं संभाल रही, उस कैमरा वहाँ पर ही था, तो आई वाज कीपिंग माई हैंड. उसको मैं पीछे भी खींच रही थी, बट वो लोग एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे. ऑलराइट, तो मैं बीच में घुस गई फाइट के. ऐसे मतलब जहाँ पे आकांक्षा है, यहाँ पे दीक्षा है, एंड आई जस्ट वेंट बीच में कि रुक जा उसको मत मार, ऐसे करके, ताकि उसको लगे नहीं. So then you got में आई गॉट हर्ट. आई वाज ओके विद इट. कोई बात नहीं, झगड़े रुकाने में कभी को लग जाता है. उतने में ही दीक्षा वो पुश किकिंग आकांक्षा नीचे से, मतलब मेरे पैर के नीचे से. तो मैंने अपना पैर ऐसे किया और मुझे बहुत ज़ोर से लग गया. वो स्कार दिख रहा रहेगा शो में, ऐसा सर्कल सा. लाइक शो में इतना दिख नहीं रहा है बिकॉज वो लोग वाइब्रेंस वगैरह डालते, बट वॉज लाइक ऐसा यूनिवर्सल कलर था वो, पर्पल ग्रीन ऑल कलर. ओके, एंड इट वॉज देयर लाइक शो के बाद भी 2.5 महीने तक. ओके, एंड व्हेन आई केम बैक होम ना फ्रॉम द शो, माई मॉम आस्क्ड मी क्या हुआ. आई लाइड टू हर कि मुझे गलती से टास्क के टाइम लगा, बिकॉज आई डिड नॉट हैव इट इन मी टू से कि मैं फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व हुई. एंड मुझे वहाँ पर चोट लगी बिकॉज मेरी मॉम को फिजिकल फाइट नहीं पसंद बिल्कुल भी. लाइक हाँ, नहीं पसंद. एंड शी क्लियरली टोल्ड मी शो के पहले कि गाली वगैरह मैं वैसे भी नहीं देती गाली वगैरह, इतना मत देना, गुस्से में भी फाइट मत करना. ऑल ऑफ दैट मैं समझा के मुझे भेजा था. या सो आई गॉट इन्वॉल्व. उतनी में ही दीक्षा उस किकिंग में उसने मुझे लात मारा और मुझे बहुत ज़ोर से लगा.
उसका शी वॉज वेयरिंग बूट्स ओके। तो मैं ऐसे हुई उतने में शी किक्ड आकांक्षा। तो आकांक्षा का जहाँ पे स्कार है ना साइड में, तो आकांक्षा तभी निकल रही थी बाहर वहाँ से, मतलब मेरे पीछे खड़ी थी, वो जा रही थी बाहर, उतने में उसको उसने यहाँ से लात मारा, उसको लग गया ओके। एंड देन उतने में आई जस्ट हेल्ड दीक्षा's हैंड लाइक दिस एंड आई एम लाइक कि रुक जा, क्या कर रही है। एंड शी पुल्ड माई हेयर, उसका हाथ यहाँ पे था ना, मेरे बाल ओपन थे, तो शी पुल्ड माई हेयर। लाइक मैं फाइट रुकाने बीच में आई एंड देन उसने लात मारना शुरू किया, मैं उसका हाथ पकड़ रही हूँ, वो मुझे मेरे बाल खींचना शुरू किया। लाइक मतलब वो टाइम पे ऐसा होता था, इतना सब खिचड़ी बन रहा था ना, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता बिकॉज माई हेयर वॉज ऑल ओवर माई फेस। रॉन वॉज कमिंग, देन योगेश अचानक से आया, ऑल ऑफ दैट। एंड द थिंग इज कि उसने शुरू किया, मैंने फिर भी उसका बाल ही खींचा था वो टाइम पे। आई वाज स्टिल होल्डिंग माई हेयर, आई एम लाइक लिसन दीक्षा, गुस्सा ठंडा कर, मत कर ये सब। एंड देन वो रुकी नहीं रही है, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एंड इट्स लाइक कि जो मुझे गुस्सा आता है ना, नो वन कैन स्टॉप मी फिर वैसा, क्योंकि मुझे गुस्सा इतना इजीली नहीं आता। लाइक इफ़ यू कीप पोकिंग मी डूइंग ऑल तब तुरंत आता है, अचानक से बहुत ज़्यादा आता है। वो चाय वाले इंसान में दिख गया था। देन आई ग्रैब दीक्षा's हेयर एंड आई वॉजंट लीविंग। मैं वो उसको घसीट रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मैं वो क्योंकि वो छोड़ ही रही है मेरे पास, मैं क्यों छोड़ूँ यार। उतने में रूरू आके बोलती सुजान छोड़ छोड़ छोड़, वो सीन थोड़ा सा आया था। उतने में आकांक्षा बाहर निकल गई एंड आकांक्षा बाहर खड़ी है, मतलब यहाँ पर उन्होंने कट किया पर वो काफ़ी देर तो उधर खड़ी ही थी, मतलब तब बाहर ऐसे कर रही है। एंड आई एम लाइक कि कोई रुकाओ तो। फिर योगेश भाग के आया, फिर उतने में आकांक्षा, जो योगेश चल के आ रहा था तभी आकांक्षा भी भाग के आ गई अचानक से बाल रुकाने। मे बी उसको ट्रॉमेटाइज हो गया रहेगा अचानक से, वो होता है ना फ्लाइट फाइट मोड, इसलिए मे बी शी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट करे। मेरा भी सेम हुआ था, बट मेरे टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं घुस जाऊँ ताकि फाइट रुक जाए, ताकि आकांक्षा को ना लगे। मेरा तो वो टाइम पे पता है, मैं मेरी मॉम को जो बता रही थी ये पूरा सिचुएशन अभी, तो मैं मॉम इज लाइक कि तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुमको भी लग सकती है, तुम्हें क्या ज़रूरत है घुसने के बीच में। एंड आई बोला कि वही तो मैं नहीं सोचा ना कि मुझे भी लग सकती है। एंड मैंने भी बाद में इतना बिग डील बनाया नहीं था कि मुझे लगी है ये वो, क्योंकि आई वाज लाइक कि ठीक है, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट समवन तो फिर हो जाता है। मतलब अभी अगर आप ऐसा वो शील्ड लेते हो एंड कोई साथ तलवार मार रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए वो शील्ड पर भी स्क्रैचेस आते हैं ना। तो आई वाज लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, बट आई वाज जस्ट काइंड ऑफ आई डोंट नो डिसअपॉइंटेड That Akansha didn't come to stop. नो वो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो मे बी फाइट फ्लाइट मोड वाला होगा, बट उसने कभी मेंशन नहीं किया ये कि उसको भी लगी थी। कि सुजान को भी लगी थी एंड सुजान मेरे लिए फाइट के बीच में आ रही थी रुकाने के लिए, ऑल ऑफ दैट। एंड मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। एपिसोड आ रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, नॉट बिकॉज मैंने आकांक्षा स्पेसिफिकली को सपोर्ट किया, बट बिकॉज कि मैं फ्रेंडशिप में इतनी अच्छी हूँ, है ना, वो रीज़न की वजह से मुझे लोग बहुत प्यार दे रहे वगैरह, एंड आई एम गेटिंग इट इनफ। मुझे और नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक आई वांट क्लाउड और नथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज कि लाइक if something happens, then the other person, if that person is there for you, at least make them feel seen, at least make them feel valued वाले वे में होता है ना। I get what you're saying. Yeah. Susan, you use the word cloud. Saundarya and few others have called you that. That I know why you're saying that that she's a cloud chaser, and that's why now she's coming out and she's there. All of them are just making reels together and stuff like that. And then Saundarya said that you have said a lot of things to her, and Anushka said that you have said some things about others that you can't even say and all, and कि बात आप इधर से उधर करती थी. See, now it's a perspective, but if we have given someone the platform to tell their side, Yeah. we have to ask you also. True. Right? Okay, Where does this come from? I'll say one by one. जो कहते हैं कि मैं रील बना रही हूँ क्लाउड के लिए वगैरह, पहली बात तो आई वॉज फ्रेंड विद आकांक्षा शो के अंदर से, मुझे पता भी नहीं था वो बाहर आके इतनी पॉपुलर होगी। लाइक इट इज़ गुड फॉर हर, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि शो के अंदर ना जब योगेश उसको छोड़ा था, आई टोल्ड हर दैट लिसन आकांक्षा, you are still yet to meet a lot of people who are gonna love you. Okay. And I did not know कि ऑडियंस होगी वो। मुझे ऐसा था कि मे बी फ्यूचर में कोई अच्छा लड़का होगा या थोड़े और अच्छे से फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड विल ऑलवेज Yeah, the best. So I just used to be like, you're still yet to meet a lot of people who are gonna absolutely love you because you're amazing and all of that. And I'm so happy to see her getting so much love. So happy. Like सबसे पहले जब उसका ग्रोथ भी हो रहा था ना, उसका 90 के वगैरह होने वाला था, we were on live together, तो वो सब केक कट कर रही थी, I was cheering for her. I was so happy. एंड यहाँ पे क्लाउड वाली बात तो आती नहीं है। क्लाउड चेजर अगर होंगे तो वो आप हो, बिकॉज जब चाय वाला इंसिडेंट हुआ, अगर आप दिखा रहे हो कि आप विक्टिम थे, आपके साथ गलत हुआ, आपके मुंह पे किसी ने चाय फेंकी है, तो आप इतना उस सिचुएशन को मिल्क क्यों कर रहे हो? बिकॉज शी वाज पोस्टिंग अ लॉट ऑफ रील्स विद सदाफ एंड आई डोंट नो हू ऑल, चाय को लेकर। एंड देन शी ऑल्सो मेड इट हर प्रोफाइल पिक्चर यूट्यूब का, सम चाय का कप, एंड देन उसने क्या वो डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि चाय पियो समथिंग।
I mean, what is it? I mean, and then वो लाई जाकर जब मुझे hate मिल रहा था तब लाई जाके वो बोलती कि इसको और hate दो और hate दो. फिर when they started seeing the episode and when they started realizing that okay they used to actually bully her and when people started hating on them they are like कि सुजान is so bad, वो एक बार रुका भी नहीं रही है लोगों को, बोल भी नहीं रही है कि hate मत करो. मैं क्यों रुकाऊँ? आप जो लोगों को encourage कर रहे हो negativity फैलाने में, तो आपको लगता है कि मैं रुकाऊंगी? Eventually me and Saundara had become friends शो के अंदर, ठीक है, शो के बाहर से हम बन गए थे. या and the thing is कि I had developed a soft spot for her, ठीक है, कि स्टार्टिंग में भी मैं उससे काफ़ी अच्छी दोस्त बन रही थी स्टार्टिंग में. फिर उसने मुझे गूंगी वगैरह बोलना शुरू किया एंड वो मतलब फ्रेंडली वे में मजाक मस्ती अलग होती है एंड आप किसी को जानबूझ के पोक करते हो बात अलग होती है. तो डाइनिंग रूम में भी मुझे काफ़ी पोक करती रहती थी, चीज़ें बोलती थी अबाउट माई एक्स एंड ऑल एंड लोग मस्ती में बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वी वर इतना क्लोज की मस्ती में जो कोई ऐसा चीज़ें बोले तो वो बोल के ना मुझे टॉन मारती थी कि तू तो 19 ईयर्स की बच्ची है, 19 ईयर ओल्ड बच्ची है. इन माई एंटायर लाइफ मैंने जब सबसे टीनेजर हुई है तब से मैंने अब तक को बच्ची बोला ही नहीं कि मैं 19 ईयर ओल्ड बच्ची हूँ, मैं सिंपैथी दो या कुछ भी दो, मैं शो में आ रही हूँ, माय गॉड मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, कोई और कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, 19 साल में मैंने उखाड़ा. मैंने कभी सब बोला नहीं क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इन दैट माइंडसेट कि मैं विक्टिम हूँ, 19 ईयर ओल्ड बच्ची हूँ, ऑल ऑफ दैट. बिकॉज मेरे तो उतनी मेच्योरिटी है. लाइक ओके फाइन, आई वॉज 19, आई टर्न 20 रिसेंटली, बट मैं नहीं गीत गा रही हूँ उसके बारे में. Those people were. And like, okay, I mean, if Sadaf and Saundara are making YouTube videos together, they are hanging out, they are making reels, so यहाँ पर उनको कोई क्लाउड चेजर, उनके पास क्लाउड ही नहीं है, तो क्लाउड चेजर बोलने लायक ही नहीं है वो लोग. नहीं तो अभी गलती से अगर हो जाते उनकी भी तो वो भी फिर क्लाउड चेजर होते हैं. That's the thing, it's like if they have nothing to say, they will say anything. And talking about this इधर से उधर बातें, फर्स्ट ऑफ ऑल आकांक्षा के बारे में मैंने पूरे सीजन शो के बाद शो के अंदर कभी भी गलत नहीं बोला क्योंकि मेरा ये क्लियर था मैं आकांक्षा के बारे में ना ही गलत सुन सकती हूँ ना ही मैं उसका गलत होते हुए देख सकती हूँ. शो में प्रूव हो गया था वो. Was that piggy wala thing true also? Because even though they keep denying it, like Zara Kendall saying that. Yeah. So remember this task, ये जब मैं गन से पैसे उड़ा रही थी and those girls were sitting together, अस्मिता उठती चली गई थी, वो टाइम पे those girls were all sitting together and they all saw a boar, क्या कहते हैं उसे, wild boar. तो वो लोग कहते वो देख आकांक्षा भाग रही बिकॉज ऑलरेडी मैड आकांक्षा ना वो टाइम पे, तो आकांक्षा कह रहे थे, तो झलक ये लोग सबने बोला था. एंड ये बात मुझे निहारिका ने बताई थी, तो निहारिका रूम के अंदर चली गई थी तो उसको वो आवाज़ सुनाई दी थी. एंड द थिंग इज़ कि ये सब चीज़ें शो वाले दिखाते नहीं है बिकॉज होता है चीज़ें वायलेंस एंड वर्बल दिस दैट. बट हाँ वो लोग ने बोली थी ये बात क्योंकि ये बात विला के अंदर भी ना बहुत चल रही थी कि हाउ कैन यू से दैट एंड दे वर लाइक अरे मस्ती कर रहे थे दिस दैट. वो टाइम में उन्होंने अग्री किया था. बाहर आके तो कभी denied it, आके- say how why would we even say it, and you are like Suzanne is making things up and all this. ज़लक अपेरेंटली सेड कि सुजान ने बुलाया, मैं तो वहाँ पर थी भी नहीं, कैमरा में दिख गया अभी एपिसोड आया तो मैं तो थी भी नहीं. एंड यू सी दिस इज द थिंग, सो दे नो कि आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज सो क्लोज टू आकांक्षा. तो अगर उनको आकांक्षा के ऊपर डॉट छिड़कना है तो कैसे छिड़केंगे, मेरे थ्रू कि सुजान ने ऐसा बोला है. और आकांक्षा को पता है मैं कभी नहीं बोलूँगी ये सब, इसलिए आकांक्षा ने बिलीव भी नहीं किया, ना ही उसने जस्टिफाई किया कि सुजान ने नहीं बोला है, बिकॉज ही नोज नहीं हो सकता ये सब. एंड इवन द ऑडियंस दे नो कि मैंने शो में कितना फ्रेंडशिप प्रूव किया है, कितना मैं थी उसके साथ. तो इट इज़ जस्ट स्टूपिड फॉर देम टू सी ऑल ऑफ दिस. दे वॉन्ट अनुष्का तो वॉज वेरी जेलस ऑफ माइन एंड आकांक्षा's फ्रेंडशिप. वो मुझे हमेशा शो के अंदर बोलती थी कि मेरे रूम में शिफ्ट हो जाए वगैरह. पहले आई थॉट कि ओके मे बी बिकॉज मी एंड अनुष्का वी आर बिकम फ्रेंड्स व्हेन शी न्यूली केम इन द विला. बट फिर उसने वो चीज़ लिख दिया था विश्व के ऊपर 10 जगह मुँह मारता है. एंड मतलब वो मुँह मारना वर्ड गलत है, भले उसने कनेक्शन बनाया, चेंज किया, 10-12 लड़की से फ्लर्ट किया, जो भी 10-12 तो नहीं बट हाँ, बट ये मुँह मारना वर्ड इज समथिंग रॉन्ग है ना. तो वो बात को लेकर आई डू नॉट लाइक इट कि तू मुझे अपना दोस्त बोल दे, तू मेरे कनेक्शन पे लिख रही है वैसा. सो वैसे हमारा फाइट हुआ था, आर्ग्यूमेंट हुआ था. उसके बाद आई वाज लाइक कि आई डोंट थिंक अनुष्का इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, बिकॉज आई वुड, भले योगेश कैसा भी हो, बट मैं कभी जाके आकांक्षा है तो योगेश का ऐसा चीज़ें नहीं बोलूँगी. हाँ, ऑल ऑफ दैट. बट हाँ, तो अनुष्का ऑलवेज टू बी लाइक कि आकाश तो यूज़ कर रही है, तेको वोट बाकी तो रख रही है. सबको वही लगता था शो के अंदर, मे भी हो सकता है, आई डोंट नो. बट वो आपको लगता है आज After you see the episodes, really, you think there was no true friendship from her side? eventually there was. Yeah, because eventually sometimes she was I- taking stand for you. She was. Of course she was. I'm not saying that it was a fake friendship. I'm not saying that. I'm just saying कि
जो स्टार्टिंग में जो था ना, जैसे वे मैं उसको वैल्यू करती थी, जैसे वे मैं इम्पोर्टेंस देती थी, वो मुझे इम्पोर्टेंस स्टार्टिंग में नहीं मिला. The intensity of the friendship हाँ, was more from stronger. you. And it's fine. I don't even in relationships ना स्टार्टिंग में कोई इंसान इतना नहीं दे पाता है. एंड इट्स फाइन. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसने मुझे ऐसा फील करा है वगैरह. वो टाइम पे काफ़ी लोग बोलते थे, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन. मुझे कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ फ्रेंडशिप में तो आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देम. मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं बाटा सिस्टम नहीं कि मैं कुछ करूँ तो वो कुछ करे, वैसे भी नहीं है. बट इट्स जस्ट लाइक कि मतलब अभी शो के बाद यार मुझे ये टॉपिक में नहीं घुसना है, बट मैं खाली शॉर्ट में बोल देती हूँ कि शो के बाद मुझे उसने ऐसा फील कराया आकांक्षा ने, बिकॉज मुझे हेट भी मिल रहा था. उसने स्टैंड लिया था चाय वाली सिचुएशन में, नो डाउट शी टुक माई स्टैंड एंड ऑफ कोर्स लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर आर. बट उसके बाद जब मेरा हाइप कम हो गया एंड ऑल ऑफ दिस, भले हाइप तभी था, नेगेटिव था बट हाइप था, ऑलराइट. उसके कम हो गया जो रिसेंट से बात चल रही है. हाँ. तो आई मीन मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मे बी मेरी और आकांक्षा की मुझे सब बातें नहीं बोलनी है. मुझे बस ओवर थिंक मैंने किया, बट झगड़े होते रहते हैं यार, सच हो ना हो आई डोंट नो, पता नहीं सच है कि नहीं है. आई डोंट थिंक उसने फेक किया मेरे साथ फ्रेंडशिप कभी. स्टार्टिंग में वही इंटेंसिटी जो था फ्रेंडशिप का वो But कम right था. now you fine. feel that you're giving it a break. कि you want to recalibrate. क्या ये word सही है? But what I'm saying, maybe you want to recalibrate or look at it. You're feeling that she's not been there for you. Right now, current. I don't want to say anything actually. ठीक है, it's Yeah, okay. yeah. Fair enough. But I hope things go better. Yeah, Whatever it's ways, whatever fine, way. it's fine, yeah. And honestly, मैं पता है अभी जानबूझकर कैसा है ना, मैं कुछ अभी बोलूँ भी, the thing is कि I'm not in this mental space to talk about it because it's like कि इधर उधर भर चुका है मेरे. मैं बोलना शुरू करूँगी, मैं एकदम मैसी में चीज़ें बोल दूँगी, मैं रोने लग जाऊँगी. मुझे नहीं ये सब करना है अभी, honestly. I need some time to process my feelings and all of that. Fair enough. And यार मैं किसी को यहाँ पे रीज़न नहीं देना चाहती हूँ कि वो हमारे फ्रेंडशिप पे उंगली उठाए, उसके ऊपर स्पेशली उंगली उठाए, बिकॉज यहाँ पे लोग तो वेट कर रहे हैं कि कुछ वो कुछ रीज़न मिले ताकि आकांक्षा पे उंगली उठाए. काफ़ी लोग उसको बोल रहे थे कि कमेंट्स में हेट दे रहे थे कि खाली वन साइड फ्रेंडशिप है, सूजी की तरफ से तेरी तरफ से नहीं है. मतलब लोगों को रीज़न चाहिए हेट करने के लिए, कुछ रीज़न हो या ना हो. सिंपैथी ले रही है, सिंपैथी किस बात का ले रही है, वो उसके साथ ये शो में हुआ है, उसका पूरा जर्नी का स्टोरी लाइन है, ये तो बात करेगी अबाउट दिस, है ना. अभी अगर सब बुरा तो हुआ है ना. बुरा हुआ है आकांक्षा के साथ, Course हुआ है, बहुत बुरा हुआ है. बहुत. अभी अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए उसका स्टैंड लिया. मैंने लिया बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, बट वन ऑफ द रीजन मैं उसका स्टैंड इतना डीपली लिया बिकॉज उसका गलत हो रहा था शो में. एंड यहाँ पे लोग उसको सिंपैथी बोले, कुछ भी बोले, बट इट्स जस्ट You know, last dome में I saw, अभी obviously बाहर आके it's a different scenario. She told Yogesh that I am, you know, मेरे लिए कोई feelings नहीं है, but I will always have a soft corner for her. I know there are a lot of Yogangsha fans who want that reunion to happen. But you have been there, seen the whole journey. बहुत कुछ हुआ है उसके साथ. You think that will happen because of this entire reunion discussion कि नहीं वो लोग मिले और and all of that, and current situation is so messy, right? All between the three of them. बहुत सारी बातें बोली जा रही है. You've seen it all. You've literally been by her side and you've seen what she's gone through, what you've gone through, I feel like as a best friend na, you are equally involved in that situation because you know you've been through all her tears and her laughter and everything. So I want your perspective on what is your perspective on what is happening between Ruru, Akanksha and Yogesh. Even though today also, I mean yesterday also, I think she came in the live and she said no, it was not a reunion and you know. Honestly, I don't know. मुझे इतना आइडिया नहीं है. No. I mean, मेरी I'm friends with Yogesh and Akanksha is okay with it. उसको तो throughout the season also when I was talking to him show के अंदर भी she used to be okay with it. उसको चलता था and all of this. That has never impacted the friendship. No, it has never. वो अगर आकांक्षा मुझे एक बार बोल देती ना कि I don't like the fact that you know you are hanging out with Yogesh and all, तो मैं नहीं करती. But But your boyfriend's best friend, all of that happens. yeah. So it's like it's complicated. Bound to happen. Like yeah, and it's like कि हम सब सेम ग्रुप के हैं. गुल्लू भी हैंग आउट करता है विद योगेश आकांक्षा, दोनों अलग अलग, ठीक है. एंड यू नो रोहित का भी ऐसा है क्योंकि रोहित इज बेस्ट फ्रेंड्स विद योगेश. Yeah. But she's friendly with Akanksha also. हाँ, क्योंकि आकांक्षा इज माय बेस्ट फ्रेंड.
So it's like two best friends. So मैंने काफ़ी देखा था, लोग बोल रहे थे काश वो भी शकात साथ में होते, फिर वैसा होता double date, two best friends ऐसा. And I mean, yeah, that's a cute idea, but I don't think it's a good idea. Really, it's a good. Wait, that's the perspective I want to see. Do you think it can ever happen? Do you think she's over it because of all that she's been through for Yogesh? See, soft spot वाली जो बात उसने डोम में बोली थी, वो तो of course like even अगर मैं उसकी सिचुएशन में तो मुझे भी soft spot होता, भले ही मुझे कितना उसमें किसी ने हर्ट किया होता, बिकॉज वही सीन है ना कि अभी इट वॉज फ्रेश, उनका न्यू ख़त्म हुआ था वो टाइम पे, एंड इतने ईजीली कोई इतना ज़्यादा मूव ऑन नहीं कर सकता. आई एम नॉट सेइंग कि उसको फीलिंग्स थी, बट वो सॉफ्ट स्पॉट था. योगेश को भी था, बिकॉज अब ही स्माइल ना इसके बाद, तो उसको कहीं ना कहीं था. एंड या आई मीन आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ, क्योंकि उनका है, उनका बिजनेस है. That's the reason why I'm getting the best friend perspective, because I feel like we will always wish the best, and I think you said it. I think you answered my question when you said I don't think it's a good idea. You know, it's the best friend perspective which you've given. But I also feel like this situation, why are people discussing it, is also because Yogesh and Ruru broke up. No, so it gives you it, and then the episodes, even though they've been shot a long time ago, they start coming out. Yeah. So people start, because everybody's invested now, na, in your life and her life. That is, I think, an issue. I mean, I don't have anything to say about it. It's like, it's just a lot, you know, it's a lot of things, like a lot of things is happening. I'm going through a lot, not because of this इनका triangle, Personal. but मेरा personal, and it's just इतना मेरे अंदर capacity नहीं है कि मैं इतना सारी चीज़ें You're process overwhelmed. करूँ. Yeah, and You're happy in your relationship with Rohit? yeah. I like how you're blushing. Cute. You're happy, right? But it must be hard for you as well, because like you rightly said, you told me multiple times in this interview that it's been overwhelming for you with what you're going through. How are you dealing with it? What is the way to deal with you trying to process and recalibrate your friendship with your best friend? And again, then also, like I said, I know you're chill about it, but it must be complicated for you. There is a little guilt also, na, because you're also hanging out with Yogesh, whatever it is. Yeah. It's just that, you know, I'm not thinking much. Because also it's just that, I mean, the whole Susanna Kash scenario, I feel like I am taking some time out for myself. Because इतना कुछ हो रहा है, हर रोज़ new controversies आ रहे हैं, and a lot of things happen. अभी रोहित शो में गया है, ठीक है, उसके शो में भी काफ़ी चीज़ें हो रही है. मुझे पता है क्या है, कितना false narrative set हो रहा है and all that. Why don't you tell the truth to people? Because the show people want that. They want me to do controversies. They want To give TRP. that attention. Yeah, they want TRP. क्योंकि जब देखोगे ना, खाली वही हाईलाइट हो रहा है रोहित का सब जगह के, रोहित is cheating on Suzanne. Rohit is not cheating on me. और वो बंदी जो भी बोल रही है, मुझे पूरा पता है क्या हुआ है. कुछ भी नहीं हुआ है वैसे. There was no nothing like that. कुछ cheat नहीं हुआ था. I mean, are you aware about it though? Then only I'll talk थोड़ा बहुत. You know, Suzy, you sounded a little vulnerable when you were talking about Rohit. You're also someone who takes stand for herself, and also if you completely believe him, then the world can say whatever, right? Yeah. I mean, मुझे अगर यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे लोगों को क्यों हो रही है? I'll tell you. So, it's simple. I don't know if you know about my past You did not have to take his name. Please, we're not giving him clout on at least your podcast. No, Usko, he's irrelevant. God. And you've been through it. Beep, beep. You've been through, people have cheated on you before in the relationship. Yeah. Let's just say that. Yeah. So, I've had a horrible thing with a guy, alright, जो viral हो गया था internet पे. उसके बाद जब मैं splits पे आई थी, I had made my mind कि I will not at all go for a guy who I feel Not loyal. isn't loyal or, you know, can act up. जैसे जो विशु ने किया, जो मैं चाहती नहीं करे, और विशु ने कर दिया eventually. वो सब चीज़ें. तो I mean, उसके बाद I made my mind कि if I ever make anything public with a guy, that guy literally needs to worship the floor I walk on. Say it. Yeah. Preach it. All in it. Exactly. Please, know your worth. Yeah, because Ji. why would I want to show off someone who's a cheater or can potentially cheat on me? No, Yeah. it is embarrassing. Like past में जो हुआ, ठीक है, वो तो
I've हुआ learned. हुआ I have grown out of it, yeah. But exactly, so I mean, I know Rohit. I know why I chose Rohit out of, जो भी लोग होंगे कभी थे वगैरह, and why I am, making it public and all of that, because he is he's genuinely an amazing guy. Like, he's so good. He's very respectful. वो जो ये allegations पे उसके ऊपर लग रहा है शो के अंदर, वो वैसा करने capable ही नहीं है वो करने के. And also this girl, I'll tell you about her. I don't want to give her थोड़ा भी limelight, spotlight, nothing, no clout, nothing. But Rohit told me कि उसका जो audition था, the GD वगैरह होते rounds, तभी he met her. Okay, because वो लोग same, like काफ़ी contestants same room, same line वगैरह में थे, and they were there, तो उनकी बातचीत हुई normal this that. And then उतने में she started, flirting with him. I mean, do I blame her? No, but but she started doing all of that. तो ये भी मुझसे मजाक कर रहा होगा. चुल है ना इतनी ज़्यादा, ठीक है. बट उतने में उसने उसको मेरे बारे में बोला कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, ताकि क्लियर रहे कि मतलब वो बंदी को कुछ इंटेंशन भी हो तो वो ना करे वाले में. मतलब ही टोल्ड हर अबाउट मी, तो आई विल इवन टेल हर अबाउट मी. एंड देन उतने में कुछ तो उसने बोला रहेगा ना, ही सर कि हमारा अभी फाइट हुआ था इसलिए मैं अपसेट हूँ, बिकॉज ही वाज अपसेट. उसके ऑडिशन के पहले हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था, वी डिड नॉट लाइक कट ईच अदर ऑफ या ब्रेकअप, हमने बात नहीं किया था उससे पहले, ठीक है. तो ही वाज अपसेट, तो उसने पूछा कि तो अपसेट क्यों लग रहा है, तो उसने बताया होगा रोहित ने. एंड देन उतने में ही वो बंदी गई अंदर. एंड देन वहाँ पर ना वो सबको, सारे कंटेस्टेंट्स को शो वाले क्वेश्चन पूछ रहे कि आपको कौन सी लड़की अच्छी लगी. कुछ शो वालों को लव एंगल चाहिए. अरे अभी देखो स्प्लिट्स विला चल रहा है, स्प्लिट्स विला से कम्पीट करने के लिए उनको कुछ तो ड्रामे दिखाने होंगे ना. या सो तो उन्होंने पूछा वो सब, तो वो बंदी ने रोहित बोला, जिसको रोहित अच्छा लगा, knowing very well that he has a girlfriend. But ठीक है, कोई बात नहीं, उसको क्वेश्चन था, बोल दिया I am not insecure about that, nothing. फिर रोहित को पूछा, रोहित को वो बंदी के बारे में पूछा कि do you think she is pretty, do you think do you like her वगैरह. तो he said no. And because that girl, जहाँ तक मुझे रोहित ने बोला, फिजिकल टास्क वगैरह कराते हैं वहाँ पे ऑडिशन में, वो नहीं कर पा रही थी. काफ़ी शोज में ना ऐसे रोडी एंड ऑल में भी लेते हैं वो. क्या बोल होता है वो लड़कियों का, जो ऐसे एकदम बस एंटरटेनमेंट होती है. ग्लैम फैक्टर, नॉट ग्लैम बट लाइक हाउ, लाइक गॉट इट. पुराने रोडीज में वन गर्ल सरुचि, someone like that, like people who are entertaining, थोड़ा ड्रामे, थोड़ा ऑल दैट, क्योंकि सब भी अगर स्ट्रेंथ वाले होंगे तो एंटरटेन कौन करेगा. वैसे वे में रोहित दोनों में है, ठीक है, एंटरटेनिंग ऑल्सो, स्ट्रेंथ वाइज ऑल्सो. बट दैट गर्ल कैसा था, तो उसको तब सेलेक्ट नहीं किया, तो शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज गोइंग. एंड देन वो जाके बोलती है कि आई थिंक शो वालों को हमारा कनेक्शन बनाना चाहते हैं. उसने रोहित को बोला, ही इज लाइक वाई, हाउ डू यू नो. तो वो बोलती है बिकॉज दे वर आस्किंग मी हु डू यू लाइक एंड आई टुक योर नेम एंड देन दे वर आस्किंग मी व्हाट डू यू लाइक अबाउट रोहित. तो लाइक उसको सब लगा वो टाइम पे. फिर शी इज लाइक कि ब्रो लिसन ना, अगर हम लव एंगल बनाएंगे, अगर तू, उसका ऑडिशन तभी हुआ नहीं था रोहित का, अगर तू जाके उनको नहीं, तभी रोहित का हो गया था, सेकंड राउंड होने वाला था. उसके बाद में अगर तू उनको बोल देगा कि देखो मैं पसंद हूँ तो मेरा हो जाएगा करके, तो वो उसके पीछे पड़ी थी बोलने के लिए. शी इज लाइक कि भले तो मुझे पसंद नहीं करता हो बट बोल दे ताकि मैं शो के अंदर आ जाऊँ. भले हम शो के अंदर लव कनेक्शन नहीं बनाएंगे बट तू खाली बोल सकते मैं शो में आ जाओ, फिर स्टार्टिंग थोड़ा करके फिर हम नहीं करेंगे. एंड ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, जो उसको नहीं करना है. बिकॉज ये रोहित को इससे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं, ना ही उसको बेनिफिट चाहिए. उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ही इज अ ग्रेट परफॉर्मर. टास्क करके उसने दिखाया भी काफ़ी एपिसोड्स में, टच वुड, ओके. एंड ही हैज़ मी, तो ही वुडंट डू एनीथिंग टू हर्ट मी. से क्लियरली बंदी को बोला था, बिकॉज इफ यू सीन द एपिसोड ना, दैट गर्ल इज टेकिंग माय नेम 10,000 बार. भले शो वाले कट कर रहे हैं और वो मेरा नाम बार बार ले रही है. व्हाई वुड अ गाय टेल यू अबाउट हिज गर्लफ्रेंड इफ ही वांट्स टू हुक अप विद यू? एंड फर्स्टली ओके, he did not hook up. I don't know why this girl is going इतना गंदे लेवल पे and saying that they did. And वो बातें घुमा रही है कि अरे नहीं इधर किया, अरे नहीं उधर किया, अरे he did this, he did that and all of this. And I think some guy clocked her and then she started crying कि यहाँ पर कोई मुझे समझ नहीं रहा है. I would be the last person to say that a girl is playing a woman card, but she is, and she's playing a cheap one. Yeah, and वही चीज़ है, लाइक फॉल्स नैरेटिव सेट करे शो में आने के लिए. रोहित ने खुद ने बोला कि तेरे को शो में आना था ना, तो शो में आ गई है ना, अभी तो तुझे और क्या चाहिए. एंड ऐसे भी नहीं है कि अभी वो शी इज़ इनटू रोहित, वो खाली रोहित को बदनाम कर रही है कि उसका ईगो हर्ट हो गया. मे बी वो रिजेक्ट हो गई तो वो बात को लेकर उसे डाइजेस्ट नहीं हो कि ओ माय गॉड मुझे रिजेक्ट किया किसी ने, मैं तो गेंदा फूल हूँ, ऑल ऑफ दैट. एंड हु आर यू ब्रो?
who are you? And the thing is that she knew कि वो रोडीज का फाइनलिस्ट है and all that, तो वो उसको काफ़ी बोल रही थी कि ब्रो तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा वगैरह, तो लाइक वो वैसे में लेके चिपक रही थी. अभी आई मीन उसे पता था मेरे बारे में सब कुछ. एंड ओके लेट्स से वो इतना अगर बोल रही है इतना कि हुआ है मेकआउट, हुआ है टेरेस पे लिफ्ट में ये वो, अगर मुझे पता नहीं हुआ है, बट अगर हुआ भी होता तो यू न्यू ना दैट ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड. Why would you still proceed to get physical with someone who has a girlfriend? Correct? And then she's like कि उसने बोला लोग का ब्रेकअप हो गया एक दिन पहले ब्रेकअप हुआ और आपको आप रेडी हो किसी से हुकअप करने के लिए जिसका एक दिन पहले ब्रेकअप हुआ. सीरियसली आई मीन सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन्स कैरेक्टर हियर, बट वो दिख रहा है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है. एंड रोहित मुझे खाली इस बात पर रह रहा है कि ये सब फालतू की जो ड्रामे कर रही है ना यहाँ पर आके दिखने के लिए, या तो मे बी शो में आने के, शो में अंदर आने के लिए उसने पक्का मेकर्स को बोला होगा कि मैं जाके ड्रामे करूँगी, मुझे ले लो. बिकॉज वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी वहाँ पर ऑडिशन के टाइम पे, एंड शी वॉज एक्टिंग साइकोटिक. लाइक उसे रिजेक्शन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था वो टाइम पर. एंड रोहित ने मना कर दिया कि आई डोंट वांट टू मेक अ लव एंगल विथ यू, आई डोंट नीड टू मेक अ फेक लव एंगल विथ यू, दिस इज नॉट अ डेटिंग शो, नथिंग. फेक करना भी होगा तो नहीं करना है करके. बट हम फेक डेटिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं. Suzy, according to you this season, who do you think have really faked it? Let's go there. कुछ भी करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, बाहर आके भी फेक कर रहे, कोई भी कुछ भी. Who do you think they are? सो दीप्तांशु सैंडी का तो फेक था काफ़ी. वो टाइम पे सौंदर्या को पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, मोहित वगैरह आई थिंक सबको ही पता था कि Sandy को पता because she said that she knew that he had left, like everything was over and then he had come inside. वो नहीं पता ऐसा उसने बोला करके, बट एक बार आर्ग्यूमेंट हो रही थी एंड देन शी वाज सेइंग दैट ही लिटरली हैज़ अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट हो रहा था कुछ तो हो सकता है. So that bond you find fake? या दैट वाज फेक. वो तो फेक था, दीप्तांशु ने बोला भी है. Yeah. उनका- Diptanshu said that you were never in love with. या बट आई डोंट नो व्हाई ही वाज सेइंग शो के अंदर कि आई लाइक यू, मतलब मस्ती कर रहा था बट लीड ऑन कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, बट उसका है वो लोग का फेक था. और So yeah, I think वो चाय वाला incident हुआ, right? Do you regret the fact that you had to be in that position? I know you've explained that it was because you being bullied and everything else, but today when you see it, because I kind of feel like you're wiser when you've come out of the show. You've seen so much more. Do you regret that? do I regret throwing tea? और ये दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. अब मैं नहीं बोलूँगी तो मुझे फिर भी गालियाँ पड़ेंगे, हाँ बोलूँगी तो फिर भी पड़ेंगे. द थिंग इज़ कि ना मैं कभी भी कुछ करती हूँ ना, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग व्हाटएवर आई हैव डन. इन दैट मोमेंट मुझे लगा सही है मैंने किया, मुझे रिग्रेट नहीं है. एंड मे बी आई मीन मैं तमीज़ से भी बात करने का ट्राई करी थी वो टाइम पे. मैं वेंट टू हर विद द टी, वो टाइम पे आई वाज लाइक यार नहीं फेक थी. सो एक टाइम पे कहीं ना कहीं दोस्त बन रही थी सैंडी मेरी, बट तब भी शी वॉज मेकिंग मी मजाक उड़ा रही थी. फिर उसने मैं एक्स के बारे में बोला चीज़ें जो दिखाया नहीं शो वालों ने, एंड ऑल ऑफ दिस. तो So you were triggered. या आई वाज ट्रिगर्ड. आई वाज लाइक कि भाई अभी फक इट, आई डोंट केयर. द थिंग इज़ कि चाय फेंकने के बाद मुझे पता नहीं मैं करूँ क्या, क्योंकि द थिंग इज़ क्या शो वालों ने बोला वायलेंस अलाउड नहीं. मुझे लगा चिल्ला चिल्ली होएगी ये वो, बट फिजिकल फाइट शुरू हो गया. या एंड whatever, but I don't regret anything in the show जो मैं किया है. You know, you said that because Sandy threw her birthday party. She invited me as well. Oh. But I know that you were invited. Yeah. And I think it was also a sign in the sense that everything was okay between the two of you, so extending a hand of friendship or whatever it is, Okay. right? And she's also friends with Yogesh had come to the party, Rohit had come to the party and met them and stuff like that, but you decided not to come. And I think you gone and said also that I didn't want to come on purpose or whatever it is. Yeah, okay, so starting में when she invited me ना, I was shocked. I was like बिकॉज उसके 2-3 दिन पहले तक वो मेरे बारे में बकवास कर रही थी. उसके खुद की बेस्ट फ्रेंड वही सेम डे पे शी पोस्टिंग स्टोरीज अबाउट मी सेइंग दैट 19-year-old बच्ची और मेंटली इल एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई वाज लाइक व्हाई शी डूइंग दिस. आई थॉट कि ठीक है मे बी अभी कैसा है, अभी शो में उसका मेरा फ्रेंडशिप दिख सकता है, क्योंकि सौंदर्या हैज़ बिन शी टोल्ड मी ऑल्सो द सेम थिंग. अभी रिसेंटली वी मेट एट दिस New on the party. ओपा वाला party. We didn't talk, but hi bye हुआ. I told her belated happy birthday, this that, and
तो उसने बस बोला कि एपिसोड के हिसाब से मैं जा रही थी, बट एपिसोड के हिसाब से तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, है ना? क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रहा था वो चाय वाला इंसिडेंट, व्हेन शी न्यू, बट स्टिल वो चाह रही थी लोग मुझे और हेट करे ताकि उसको ज़्यादा प्यार मिले वैसे वे में। I thought a lot of people were guessing that you didn't go because you're taking a stand for Akanksha as well. हाँ, I'm coming to that. So all of this thing, like, it's all there that, you know, वो मेरे बारे में जाके पॉडकास्ट में बुरा बोल रही थी, एंड तो लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि वो So मुझे, you didn't know that why would she invite you types? I didn't know why she's inviting me. Like, कहीं ना मुझे लगा कि maybe white flag wave कर रही है, and I thought कि ठीक है, you know what, maybe I'll go. Then it just clicked me कि you know what, maybe I shouldn't go. Because firstly, self respect जो भी उसने मेरे बारे में बोली थी वो टाइम पर, and birthday is a big thing. अगर normal get together party होता मैं फिर भी सोचती छोड़ो, but birthday is a big thing, alright. And मैंने अगर आकांक्षा के लिए story डालनी नहीं थी, because of whatever, you know, I mean has been happening, तो मैं सैंडी के birthday पर तो नहीं जा सकती. You felt like it was the right thing to do. Yeah, and I felt like I'm not trying to be a people pleaser here, but I felt like Akansha also wouldn't like the fact कि मैं उस आकांक्षा के बर्थडे पे willingly नहीं गई और मैं सौंदर्य के बर्थडे पे जा रही हूँ. Why didn't you go willingly to her birthday in Goa? Because everybody was asking you, right? Where is Suzy and all of that. I had some work. Yeah. You're saying you had some work, but looks like there are other reasons. ठीक है, कोई नहीं. And we don't want to push. I mean अगर कोई दिल से बुलाता है तो फिर चले भी जाते हैं, but नाम के लिए अगर कोई formality के लिए छोड़ा, it's fine. I mean whatever. It's okay. Let's not get into it. Okay, let's not get into it. Suzy, we spoke about that. Again, it's complicated. Yogesh and Rohit are friends with Sandy. You know, it's how do you keep all this separate? Ki, like, because you know it can be complicated. Agar kabhi like you were discussing, when your friends are going through fights or you are going through fights, your friends also kind of get involved in it. Yeah. Like if How I have you hate someone, you should also hate someone type. हाँ, you should, but sometimes it can be थोड़ा layers होता है उसमें कि इस लेवल का हेट क्योंकि ये डूएबल है तो चलो वी कैन मेक दैट बाउंड्री और व्हाटएवर इट इज. आई डोंट नो. मुझे जस्ट जानना है, हाउ हैव यू बीन एबल टू, डज इट लाइक कम अप इन कॉन्वर्सेशंस बिटवीन योगेश यू एंड रोहित कि क्या करें, राइट? बिकॉज यू आर इट्स टू क्लोज टू होम ना, जिसे कहते हैं हम. Got it. See, of course, मैंने इससे पहले बोली सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात कि उसने मेरे बारे में पॉडकास्ट आके बुरा बोला है. कहीं ना कहीं मुझे पहले फ़र्क पड़ रहा था, फिर मैंने फ़र्क पड़ना बंद हो गया. बट देन अगेन इट्स लाइक उसने बोली है वो चीज़ें, तो मैं तो नहीं जा सकती. तो मुझे भले फ़र्क नहीं पड़ता, पर आई वाज टेल लाइक कि ठीक है, नो व्हाट, रोहित शो में जाने वाला है. रोहित एंड योगेश दे हैवंट स्पेंट लाइक टाइम टुगेदर प्रॉपर. रोहित सॉरी योगेश का इवेंट था पुणे में, ऑलराइट. Rohit did not go because he wanted to spend time with me here एक दो दिन, all right. And then उसके बाद I felt like, you know, maybe they deserve to go out together. भले वो सैंडी का बर्थडे हो कुछ भी वगैरह. And then मुझे वो लोग बोल रहे थे तू भी चल ले वगैरह. And I was like, I don't think I can, you know, like मैं मेरा सा था कि it's fine, you can go यार. मतलब मुझे ऐसा कुछ वैसा नहीं है कि I hate Sandy. No, ऑली अभी सैंडी दिख जाती मुझे, you know, we both give each other that look ऐसा एक दूसरे को. लाइक कैसा लुक पता है, दो एक्सेस होते हैं ना, अगर गलती से पार्टी में टकरा जाते हैं तो वैसे फिर उसके बाद ना घूम के ऐसे ऐसा मंडराते मेरे पास आती है ऐसे. ठीक है, उस दिन वही होता पार्टी में. आई थिंक इज के आई मीन लाइक मैंने ये कभी बोला नहीं पॉडकास्ट में ओपनली, बट हेट्रेड और पॉडकास्ट को साइड रखते हुए आई डू मिस सैंडी, क्योंकि वी हैड बिकम गुड फ्रेंड्स आफ्टर चाइना इंसिडेंट. वी यूज्ड टू, यू नो, लाइक हम हंसते थे उसके ऊपर कि ब्रो हमारा कितना हमारा मारी हुआ है, लुक एट अस नाउ वी आर सो क्लोज करके. कुछ शो में हो गए थे हम क्लोज. शी वाज चीयरिंग फॉर मी, शी वाज, मैं उसको अपना विग वगैरह दिया था. आई वांटेड टू विन. Yeah, we saw that. Slay that. Yeah, she did win. I was so happy. And वो टाइम पे अगर मुझे कहीं ना कहीं वो ग्रजेस होते तो मैं चिढ़ जाती कि मेरी इतनी गंदी एक्टिंग कर रही है, हंस के मुझे साइकोटिक दिखा रही है, बट मैं मस्ती में ले रही थी. मैंने उसकी एक्टिंग, I think you took it in, a lot of people didn't take it the way. yeah, that's the thing. And people were loving us for that, me and Sandy. And like of course, like I said, like I missed her and I thought कि maybe मैं चल जाती बर्थडे पे, like चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी. बट फिर मतलब कैसा है ना, तब भी I wasn't ready for it. I was like कि वापस थोड़ा टाइम चाहिए मुझे. अब इसके बाद अगर कोई पार्टी होगा जहाँ पे हम वापस टकराएंगे तो हम थोड़ा, जो लास्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ था 2-5 सेकंड का हाई वाई, उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है. And yeah, I mean, I don't have any problem with Yogesh, Rohit being. See, Rohit was friends with Sandy. उनका भी हाई वाई है normal, okay. And
ये हो रहा है। इंडस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर दुनिया बहुत छोटी है। अभी यहाँ पे आकांक्षा को प्रॉब्लम नहीं है मेरे और रोहित योगेश की दोस्ती करने से, तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर हो रही होती तो मैं बोल देती कि आई डोंट वांट हिम टू गो, बट वो चले गया। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं हो रही थी प्रॉब्लम वो टाइम पर। It's okay. You need to bifurcate. Complicated, like you said. उसका भी लाइफ है मेरे अलावा, मेरा भी बिल्कुल। लाइफ है। हाँ, या How is Rohit reacting to your issues right now? Because I think like you spoke very cutely of him. मुझे लगता है ऐसा इंसान obviously involved होगा, सुनेगा आप जो आपकी जिंदगी में जो हो रहा है again. And like I said, his best friend is involved and your best friend is involved. How has Rohit been there for you and how has he been reacting to everything? Are you talking about mine and Akansha's? Yeah. That one. So, of course, like whatever I have been feeling, Rohit knows about everything. Okay, he's been there, and it's like कि कहीं ना कहीं I see myself in him. अगर आपने रोलीज भी देखा होगा ना, तो योगेश और रोहित का फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था। वहाँ पर एक दूसरे को स्टैंड लेते थे। रोहित फिजिकल, मतलब वो ऐसा था कि किसी को मार भी देगा योगेश के लिए, कोई बदतमीजी करेगा तो वैसा था। तो लाइक आई कनेक्टेड विथ हिम इतना जल्दी बिकॉज आई कुड सी माई सेल्फ। एंड वो टाइम पे व्हेन आई मेट रोहित ना, तो वो टाइम पर योगेश एंड रोहित वरंट फ्रेंड्स, लाइक उनका तभी बातचीत बंद हो गया था। ओके, एंड मैं उसको बहुत कन्विंस करती थी कि बात कर ले योगेश। आई डिड नॉट नो हुआ क्या, उसने मुझे कभी बताया नहीं। उसने मुझे इसलिए नहीं बताया था कभी भी क्योंकि भले ही योगेश गलत हो या ना हो, बट इफ़ ही टेल्स मी समथिंग उसके पीओवी से ना, तो फिर मेरे दिमाग में योगेश के लिए वो इमेज पैदा हो जाएगी। देन आई स्टार्ट सीइंग योगेश डिफरेंटली। स्वीट। हाँ, सो ही डिड नॉट वांट कि मेरा योगेश में बॉन्ड खराब हो, क्योंकि उनका बीफ कुछ तो हुआ था पर्सनल, जो काफ़ी था चीज़ें। सॉर्ट हो गया। हाँ, वो सॉर्ट हो गया, वो हमने सॉर्ट करा दिया। फिर उसके बाद व्हेन ही ओपनड अप टू मी कि हुआ क्या था, एंड उसके बाद थोड़े टाइम के बाद व्हेन आई ओपनड अप कि जो मुझे फील हो रहा है आकांक्षा एंड ऑल को लेकर, लाइक आई लव आकांक्षा, आई स्टिल लव हर। ओके, बट जब चीज़ें लाइक हर्ट करती तो हम क्या कर सकते हैं। सो व्हेन आई ओपनड अप टू हिम, तो इट्स लाइक मुझे फिर क्लिक हुआ कि शिट, वी बोथ आर लाइक Similar. बिकॉज वो भी फ्रेंडशिप में बहुत करता है एंड मैं भी बहुत करती हूँ। एंड आई फेल लाइक कि मुझे और कोई बेटर समझ ही नहीं पाएगा इसके सिवाय। तो ही कम्फर्टेड मी, लाइक ही वॉज देयर फॉर मी। एंड ऐसे नहीं है कि ही वॉज, आई मीन, बट ये सीन ना कब हुआ, एंड में उसके शो में आने से पहले के, उससे पहले मैं बॉटल अप करके किसी को नहीं बताया था जो मुझे फील हो रहा। मुझे काफ़ी मन से फील हो जा रहा है। I'm लाइक छोड़ो, मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। बट कभी कभी कैसा होता है, मैंने बॉटल अप देन सडनली वो बर्स्ट हो जाता है, राइट? सो आई बर्स्ट इन फ्रंट ऑफ हिम and like I honestly crying in front of a guy or like anyone is the last thing I want to do, but मुझसे नहीं कंट्रोल होता, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। एंड हाँ, तो he was there, but then फिर उसके बाद वो शो में चले गया। And like I am having a really hard time on Doing it alone. Yeah. Must be. विशु पे अगर मैं वापस आऊँ, Okay. प्रीत के साथ जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बिकॉज प्रीत का उसके पहले हर्षित गया था एंड शी सेड दैट शी वाज वेरी इनटू हिम एंड शी वाज क्राइंग एंड देन दिस केम, उसके पहले भी देयर वाज अनदर। सो लॉट ऑफ पीपल हैव नोटिस्ड दैट पैटर्न एंड दे आर कॉलिंग इट आउट, saying that you've been telling that you really like that person, immediately someone is going and then you're liking it, right? Preet, no? हाँ, but even Vishu was saying that, you know, that he likes her and stuff like that. Like, how do you analyze that whole thing? I keep asking Vishu the same thing. Even last time we were on a call and I was like, I need to know what was up. He's like, मैं पागल था तभी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। And I'm like, did you actually love Preet? बोलता है कि no, I did not love her. मैंने कभी ये बोला नहीं I love her. And I'm like कि तू था क्या, तू कर क्या रहा था? बोलता है I messed up and everything. Like हमारा इतना अच्छा चल रहा था नहीं, मतलब कैसे समझाऊँ मैं कि The thing is that you all looked cute together, but I don't think you all were telling each other that you all love each other and you all were trying to. उतना तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखा. Unlike the others, right, who were all lovey-dovey and they were like, I'm so into you. है ना? We never loved each other, but I think वो connection, trust, bond, likeness वगैरह वो सब फिर भी थी। Like मैंने जैसे बताया ना कि Vishu started feeling like family to me. Not भाई बहन डाल के, family as in like someone I could rely on. Because task के पहले ना मुझे कभी कभार ना पैनिक फील होता था बहुत। मेरा ये गन वाला टास्क था ना, उससे पहले मेरा विशु का फाइट हुआ था बहुत गंदा, तो मैं ऑलरेडी बहुत ओवरवेल्म थी। तो मुझे लाइक एंजाइटी अटैक्स आते थे कभी कभार, ठीक है, शो के अंदर। तो मुझे वो हो रहा था, ऑलराइट। एंड वो टाइम में मेडिसिन वगैरह कुछ ऐसा मैंने लिया नहीं था,
शो में, तो वो टास्क मेरा रूरू का इंडिविजुअल था एंड आई वाज ऑलरेडी ओवरवेल्म एंड मैं किसको बताती, क्योंकि हमेशा टास्क के पहले विश यूज्ड टू ऑलवेज काम मी डाउन कि शांत हो जा, ये वो खुद शांत नहीं होता था टास्क के बीच में. ही यूज्ड टू बिकम इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, लाउड, कि कभी कभार फका होता. वो अंडा वाला जो टास्क था, तो उसने इतना ऐसे, तो इट वाज नॉट नीडेड. इतना उसके अंदर वो आ जाता है ना एनर्जी टास्क Suddenly, इट्स अ गुड थिंग, बट अगेन इट कैन मेस थिंग्स अप. हाँ, तो वैसे वे में तो ही यूज्ड टू काम मी डाउन ऑल दैट. कभी कभार अब आई यूज्ड टू बी रियली एक्साइटेड फॉर डांस, बट कभी कभार होता था कि व्हेन आई यूज्ड टू बी रियली स्ट्रेस्ड, और वो प्रीत वाली सिचुएशन आई वाज रियली स्ट्रेस्ड, तो वो इम्पैक्ट होता था मेरी परफॉर्मेंस में भी. तो वो वाला मैं हार गई थी, गन वाला. इवन जब मैं वो गन ऐसे से उड़ा रही थी ना, माय हैंड वाज शिवरिंग, और वो नोट इधर ऐसे सब जगह बिखरे हुए थे, तो वो मैं नोट अंदर डाल भी नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा हाथ ऐसे हो रहा था. एंड आई लॉस्ट इट एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, इट्स फाइन, वो तो हार जीत होती है. मैंने उससे पहले वाले डोम में बोला था कि मैं Correct. थ्रोन पे आओगी, मैं आ गई. जी. ये नहीं बोला था कि मैं आके बैठी रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा था नहीं. मुझे बस प्रूफ करना था कि इसने मुझे उतारा, तो मैं भी इसको उतार के खुद आऊँगी ऊपर एक बार. And वो मैंने कर लिया था. आई वाज सैटिस्फाइड, तो इसलिए आई डिड नॉट केयर दैट मच. बट आई फील लाइक विशु हैज़ बीन देयर फॉर मी इवन इन दिस डोम सेशन ना. जब मैं रो रही थी आकांक्षा को लेके, मेरा आँख से आंसू की बूंद नीचे गिरी नहीं, विशु उठ के आ जाता था कि तू क्यों रो रही है. एंड लाइक ही इज़ बिन रियली सपोर्टिव, ही इज़ बिन रियली कंफर्टिंग. आई फील लाइक अगर विशु नहीं होता ना शो में, अगर मैं किसी और का कनेक्शन बनाती, तो जिस हिसाब से मैं इतना खुल के ब्लूम होके दिखी हूँ ना शो में, मैं नहीं दिख पाती. नहीं, शो में दिखी नहीं, सॉरी, ब्लूम नहीं हो पाती, खुल के नहीं आ खुल नहीं पाती इतना, लाइक Yeah. इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती. Yeah, becoming yourself completely. यस. Suzy, this is a theory that you let, yeah, and you have to tell me if it is, you agree with it, disagree with it, what do you think about it? Okay? That Gullu, all of them, they were controlling. हाँ, ठीक. हाँ. That Gullu, all of them were controlling the game, and they tried to control Vishu as well, and they were successful at some points. And they, because Preet, Zalak are very close to Kyra, and Gullu also listens to Kyra, it felt like they were trying to manipulate Vishu into saying that you have to be a connection because they are also vote bank for each other. Correct. कि वो लोग खुद के लिए भी वोट बैंक है, तो तुम देख लो, because you can't survive alone, right? I mean, that's what we've seen. Except in the beginning where he took a stand for himself and he did few decisions, but later he was playing with all of them, right? क्या आपको लगता है ये थ्योरी सही है कि that sometimes he has taken till the last because he thought that he will look bad कि अभी वो सुजन को suddenly छोड़ दूंगा तो गलत लगूंगा कि, and then he thought ये अभी सही मौका है, अब प्रीत के पास कोई खेलने के लिए होगा नहीं, I have to go to my main alliance. I'll tell you. So विशु ना कभी झुंड में नहीं खेल रहा था, जो थोड़ा सा सारा खेलता था. झुंड था ना, तो शो में जब मैं थी ना, मुझे नहीं लगा. ओके, दे यूज्ड टू ऑफ कोर्स गिव ओपिनियंस, वो लोग उसको कान भरते थे. ज़लक सबसे ज़्यादा भरती थी कि प्रीत के साथ रहे, और जब वो प्रीत के पास जा रहे, भले वो प्रैंक था, बट आई वाज क्राइंग टू ज़लक. ना ज़लक क्लोज थे भी नहीं, बट आई वाज क्राइंग टू ज़लक बिकॉज इट्स लाइक आई वाज सो वल्नरेबल. मतलब मुझसे रुका नहीं जाता. आकांक्षा थी नहीं, वो मेडिकल रूम गई थी बिकॉज उसका फाइट हो गया था दीक्षा से. तुरंत फाइट के बाद ही मेरा आउटबर्स्ट शुरू हो गया. द रीज़न आई स्टार्ट क्राइंग इतना ज़्यादा वाज बिकॉज ऑलरेडी वो फाइट हुई थी, तो मुझे और ज़्यादा डीपली फील होने लग गई चीज़ें. ऑलराइट. सो आई मीन आई डिड नॉट हैव एनीवन, तो मैं रो रही थी प्रीत के सामने, विशु के सामने कि क्या है, गौरीश और गुल्लू है. एंड द थिंग विथ मी ना कि जब मैं रोती हूँ ना, तो कभी कभार मैं ऐसा बस हंसती सिचुएशन में. अभी वो डोम में भी मैं थी, मैं ना जब आकांक्षा पर चल के आई स्टार्ट लाफिंग स्माइलिंग, ठीक है, उतने आई सॉ आकांक्षा एंड उसकी आंखों में टीयर्स थे, तो वो देख के मेरा रोना शुरू हो गया था. हग्ड, मतलब क्योंकि मैं कंट्रोल करती हूँ, इसलिए जब मुझे रोना आता ना, तो मैं कंट्रोल की स्माइल करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं रो नहीं और ज़्यादा. बट फिर आई सॉ हर, उसके आंखों में टीयर्स थे, तो फिर मेरा रोना शुरू हो गया. एंड देन आई वाज लाइक भाई, अब मतलब मुझे पता है ना वो रो रही है, उसको देख के मैं और टूट गई थी वो टाइम पर. तो ठीक है, आकांक्षा का तो है, बट सिचुएशन था. बट इसमें ये हुआ, फिर गुल्लू, गौरीश, एवरीवन केम, ज़लक केम, एंड इन दैट मोमेंट आई डोंट नो व्हाई, बट आई क्राइड एंड आई एक्सपेक्टेड देम टू एटलीस्ट सपोर्ट मी कि यार विशु मत कर, सही नहीं है, सूजी को मत छोड़. एक बार गौरीश ने बोला था ये बात कि भाई मत कर, गलत कर सूजी साथ. गुल्लू ने कभी नहीं बोला, ज़लक ने कभी नहीं बोला. इनफैक्ट जब मैं ज़लक को बैठ समझा रही थी ना कि ब्रो यू वर इन दिस सिचुएशन, तेरा कनेक्शन जो था वो किसी और से परफॉर्म कर रहा है आइल मैच की वजह से,
एंड तू यहाँ पे लेफ्ट आउट फील कर रही है, तो तू क्यों चाहती है मैं भी वो चीज़ से गो थ्रू करूँ? लाइक ऑफ कोर्स आई फेल्ट बैड फॉर झलक, बट मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी, बट वो चाहती कि मेरा भी खराब हो। तो वो बोलती थी कि प्रीत इज़ माई फ्रेंड नाउ, ऐसे करके। एंड हम लाइक ठीक है, समझ में आता है शी इज़ योर फ्रेंड एंड तू चाहती कि वो गेम में रहे, बट तू मेरा घर खराब कर रही है। भले ही मेरा ऐसा प्यार नहीं था मुझे विशु से, बट एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेंडशिप थी। या एंड मैं वही तो बता रही हूँ कि मैं इतना दिखाया नहीं उन्होंने, बट मैं हर डोम सेशन जब भी आता था ना टॉपिक अबाउट विशु, हर डोम सेशन में बोलती थी मैं कि आई एम सो ग्रेटफुल कि विशु मेरे साथ है अभी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड वही चीज़ है, तो ज़लक वाज फुली सपोर्टिंग दैट, एंड वो लोग उसका सर भर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो लोग उसका ये जो था और कहीं जाने के लिए विद प्रीत, उन्होंने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भरा ये सब, ऑल राइट। एंड उसने सुना, क्यों सुना, मे बी उसको प्रीत को बचाना था। ही टोल्ड मी कि उसको प्रीत को बचाना था, इसलिए ही वेंट इन द ऑर्किड। एंड आई वाज लाइक कि अगर तो आयरन मैन बन जाता तो मेरा क्या होता? तो ही टोल्ड मी वो टाइम पर डोम के बाद कि तू तो थ्रोन पे है, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पिट कॉइन्स, सो यू आर सेफ। तू पावर वाला मैं तेरे से परफॉर्म कर सकता हूँ, आयरन मैच वाला आई परफॉर्म विथ हर, यू आर गोना बी सेफ एनी विच वे, तेरे को खाली पैसे कमाने हैं। एंड वो टाइम पे आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर इसको सर लग रहा है तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं दीवार पे तो सर मार नहीं सकती 10 बार अपना एक्सप्लेन करते करते कि मुझे डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है जी। कि मेरा कनेक्शन जो डे वन से इतना बोलता है गीत गीत गीत, सूजी में गीत है, आज उसको कोई और गीत लग रही है वैसे वे में। उसको वो वही बोलता था कि आई थिंक प्रीत गीत वाइब्स देती है, एंड आई वाज शॉक्ड कि ये सब चीज़ें तो मुझे बोलता था, अब तो उसको बोल रहा है। बट फिर उसके बाद वो चले गई, तो उसको फिर दिमाग में आया कि शिट नहीं, सूजी अच्छी है, सूजी इज़ द बेस्ट, एंड आई वाज लाइक अब क्या बोले? अब क्या ही बोलूँ मैं। या You know, you have said it multiple times that you have been bullied, which is why you felt and you used to take a stand for yourself, and makes sense why you're saying that I felt like he felt like family, Vishu, because you used to take pangi with everybody, right? Like you rightly said. है ना? तो वो फिर why will then they come and they support you, and you had of course Akanksha and Vishu for you there. If you see it that way, truly it does look like that. So then I had asked Saundarya, saying that, you know, you all have been called bullies, you and Sadaf and, you know, Kaira and all of them all. And then she outrightly denied it, saying that you're only taking a stand for yourselves. Everybody's seen that how they have behaved with us, you and Akanksha. वी हैवंट, मेरा कांशा हमने फालतू में किसी से पंगे लिए नहीं। अभी भी शो में कितने लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे, ओके, मुझे पता नहीं था कि सारी लड़कियां झुंड बना के उसकी बेचिंग करी। पिग वाली बात बहुत बाद में आई थी, एंड वो ऑफ कैमरा हमारी सबके आगे वो जब जहाँ पे निहारिका उठ के चली जाती है। हाँ, वो टाइम मुझे पता नहीं था ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो ऊपर नोट उड़ा रही थी ना, तो मैं तो इतनी फोकस टास्क में, तो मैं देख नहीं पाई नीचे हो क्या रहा है। ओके, सब एक दूसरे में कूद रहे थे, एवरी वन में पुशिंग ईच अदर, बट यहाँ पर खाली आकांक्षा का नाम आया है। आकांक्षा ने पैर वैर रखा था कायरा के हाथ By में, mistake, वो obviously. गलती से उसकी इंटेंशन थोड़ी थी वगैरह, वो भी परफॉर्म कर रही है, एंड प्लस वो आइडल मैच भी नहीं है, तो वो तो और ज़्यादा चाहती है ना कि वो अच्छा करे, तो वो और ज़्यादा एनर्जी से परफॉर्म कर रही थी वो टाइम पर। एंड लग जाता है, कायरा उसके एक डोम पहले खुद बोल रही थी कि चोट लगती है परफॉर्म करने में, ऐसा सब, तो उससे तो छुई मुई मत बनो, परफॉर्म मत करो, ऐसा खुद बोल रही थी ना वो। तो उसके अगले ही डोम में शी इज़ लाइक कि मुझे लगा ये वो, तो मतलब वही सीन है ना कि आपकी खुद की बातें बैठ नहीं रही है, आप दो अलग अलग बातें कर रहे हो। वही तो मुझे कायरा से कुछ बीफ नहीं है, खाली वो मैटर को लेकर मैं बोल रही हूँ। स्टार्टिंग में ना मैं बताती हूँ कि रियल लाइफ में भी कोई अगर मुझसे फालतू पंगे लेंगे ना, तो मैं उल्टा जवाब दूंगी, नहीं तो मुझे ऐसा सांस नहीं आती है, ठीक है। वो टाइम पर ऐसा हो गया था कि आई डिड नॉट फील लाइक आई हैव like a supporting person behind me. Did they say mean comments personally about you and body shame you and all of that as well? Yeah. Who did that? क्या बोला? I mean, सदाफ बोलती थी कि मतलब 19-year-old बोलती है, झूठ बोलती होगी, बट बॉडी से तो लगता नहीं है, मतलब खाली खाली तेरा बॉडी बढ़ गया है क्या, दिमाग नहीं बढ़ रहा है, मतलब वो तो मतलब That's really mean. That's weird. I mean, मैं आपको थोड़ी बोल रही हूँ कि आप सौंदर्या also, I mean, सौंदर्या तो सौंदर्या से नेवर बॉडी शेम मी, वैसा मुझे कभी बॉडी शेम की नहीं है, बट शी यूज्ड टू टॉक अबाउट माई पास्ट, मतलब मैं इतना कुछ पास नहीं रहा है, वही जो मेरा था द होल कॉन्ट्रोवर्सी थिंग, उसको लेके पोक करती रहती थी बार बार। उसको लगता था कि पता नहीं कि मतलब
I don't know because she knows that guy through someone पहले से and all of that. तो वो actually poke करती मुझे नहीं अच्छा लगता था. And सदा भी बोलती थी हिमांशु all these people they also used to body shame me क्योंकि वो टास्क आता था ना जहाँ पर शोल्डर में उठाना है विशु को. तो सॉरी विशु को मुझे उठाना है तो विशु उठा लेता था बट दीज पीपल यूज्ड टू पहले भी लाइक कि कैसे उठाएगा विशु ये वो एंड हाइट शेम वगैरह भी आयुष ने काफ़ी किया है विशु को हर फाइट में उसको हाइट शेम करता है वगैरह. वाई आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. बट whatever यार अभी इनके घर का राशन थोड़ी खा रही हूँ मैं जो मुझे वो बोल रहे हैं फालतू चीज़ें. बट yeah I mean I don't let it affect me honestly. मुझे ऐसा कोई insecure फील नहीं हुआ कि oh shit they're body shaming me they think I'm heavy and whatever. I don't care. I want to end by this. I'm always for the sisterhood. I think there is nothing more powerful than having friends, women who understand you, stand by you through thick and thin. Yeah. और घर के बाहर ये मुझे दिखने को मिल रहा था कि निहारिका, अस्मिता, आप, आकांक्षा, Yeah. all four of you were there for each other. Sometimes the tasks also you see Niharika and stuff. Now Niharika and Asmita have unfollowed each other apparently and they're not talking to each other. And you know there are issues between you and Akanksha maybe, whatever. Now I feel bad because I was really rooting for sisterhood. Yeah. I want you to tell me what is your views on this? कि क्या हो रहा है? क्या things will go back? Because you're right, people will try taking advantage of it, right? Because if you're together, nobody can break it. Yeah, exactly. Now it's like, I mean, मुझे honestly निहारिका अस्मिता का कुछ भी नहीं पता है. You know, I am still, you know, I was planning to meet Asmita अभी recently. Yeah. हमारा मिलना था but नहीं मिल पाया because of, you know, busy schedule and all of this. तो I genuinely don't know. Like, I'm being honest. I don't know क्या हो रहा है. Fair enough. और निहारिका से ये बात नहीं हो पाई अभी. The thing is कि before all of this, like जैसे शो खत्म हुआ ना तो when me, Asmita, Niharika and Akansha we became close, even before we became like the most hyped baddies and all of that, we were planning a trip together. Alright, and we were planning कि हम आकांक्षा के बर्थडे पे थाईलैंड जाएंगे because वहाँ पे वो सॉन्गकांग आई थिंक फेस्टिवल होता है. Yeah. And I love it. I really want to go for it. It's like it's there in my bucket list. Okay, and Niharika loves traveling. Okay, and like we all want to travel together. तो हमारा था ऐसा. फिर eventually सब busy होने लग गए. निहारिका busy होने लग गई. You know she's आजकल ज़्यादा with Saurabh and all of that. फिर आकांक्षा भी गुल्लू के साथ रहती है ज़्यादा. फिर मेरा भी काम हो गया एंड देन अस्मिता वाज आल्सो ट्रैवलिंग एंड बिजी विद हर वर्क तो वो हो नहीं पाया कभी. एंड नाउ ये सारी चीज़ें हो रही है एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट. आई फील लाइक इट्स नज़र यू नो हो सकता है मे बी. Really? या और मे बी कुछ इंटरनली हुआ है उनका. For all the people who want everything to be okay, all your fans, all your friends, well-wishers, do you have a message for them? Because मुझे पता है आप बहुत कुछ बोल नहीं सकते. आपको comments तो दिख रहे होंगे because you like to interact with them. I know you've read those comments. I'm not going to not make you put in that place again. I'm not even going to mention the comments. But if you wanted to tell them something about, because I think they're worried, right? When they ask you, is everything okay? People can notice, you know, internet observes everything. I honestly am blank right now. Okay, I'm having a hard time processing my own thoughts right now because I have so many things going on here, and I don't think I can, you know, put anything out there abhi for now. Not So to people who all- are asking you all that. Yeah, no, I don't think I can. I genuinely don't think I have it in me right now to process all of that. I need some time. You need some time. I need some We will time. give you that time. Even if the message is no message, I'm sure you're watching their comments and their love that they're giving you though. Yeah. And I think you hold on to that, okay? And I mean, of course, people are, you know, loving हमारा friendship and हम चारों का, and even I love it a lot. But if sometimes it's just that Things don't work out the way. things, I don't know, जैसे maybe eventually चीज़ें वापस आ जाएगी या फिर नहीं आएगी पता नहीं. अभी तो मेरी खुद की बात नहीं हुई है किसी से भी about all of this. I haven't spoken to Akansha इतना ज़्यादा about what exactly I'm feeling because I mean कभी हमारी बात हो ही नहीं पाई है क्योंकि हम मिलते ही नहीं है इतना कभी. हम
टेक्स्ट कॉल पे बात नहीं करते कभी, एंड शी इज़ ज़्यादा कर विद गुल्लू सौरभ पीपल एंड या Suzy, we are wishing the best for you, and we are hoping that everything goes back to normal between the two of you, and we're cheering for you. And even if it doesn't, I hope that you stay happy and you get back your spark that you were talking about throughout the interview. I know that is important. I kid you not, but I feel like I'm starting to lose it again. And I don't want to lose my spark because of anyone or anything like that. But होता है, it's like if you connect yourself too much, whether it's a guy or anyone, तो वो होता है कहीं ना कहीं you feel it's like there's a pot, okay, उसके अंदर तुम पानी भरे जा रहे हो तो वैसे तुम्हारे अंदर जितना पानी होगा खत्म हो जाएगा ना. हाँ. But वही हो रहा है. I mean, I feel very exhausted. On that note, we will talk when you're ready. You have my number. And when you're ready, you can text me and then we shall talk. We will tell the world your story. But till then, we just want you to be happy and let all the women know, particularly, कि you can't let your spark die. Yeah, exactly. It's okay, guys. Bad days. It's just a bad day. It's not a bad life. It's not a bad life. On that note, thank you for being so vulnerable and honest. And like I said, we're going to talk soon again when you are ready for it. Yeah. Thank you so much for understanding. Of course. Thank you. Thank you.